and the continuous actions of Sahaba radiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam implemented it. That can be a zanni hadith, but Sahaba radiyallahu anhum did it. After Sahaba radiyallahu anhum, Muslims during the Khilafah ibn Umayyah, Khilafah ibn Abbas, Khilafah Abbasiyah, this punishment was implemented. So just like Salah is accepted because of its continuous similarly, Rajam is accepted because of its continuous transmission. And by the way, Rajam is not the matter of Aqidah, it's a matter of Amal. Right, yeah. Also, just one more last question, if that's okay. Please be quick. Okay, sure. So one of the other doubts he said he comes up with is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was instructed to make his message for everyone. However, there are a hadith where which only one person or one Sahabi narrates, which was only a conversation between these two. So what he says is, how come this is the case when the message is supposed to be general for everyone? Where did he say that make every hadith or every conversation that takes place between me and you, make it and make it general and publicize it everywhere? Where does he say? No, I mean in terms of Islamic knowledge itself. No, I understand that, but there has to be some evidence. Whatever you're saying, it has to be supported by an evidence. For example, we have the hadith of Zainab bint Jahash. I think it is narrated by Ibn Urwa or Urwa. So which basically has it that she went to Prophet sallallahu alaihi wasallam and she asked him regarding a woman who has daima. So then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responded to her. So this was kind of no. You didn't understand my question. My question is that their narrative is that every conversation that took place between Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba was supposed to be publicized and was supposed to be made to everyone. Yeah. How do we know that? What is the dalil for that? No, sorry. So that's not their argument. Actually, their argument is everything. All the knowledge, all the Islamic knowledge has to be it cannot be khas. No, you cannot. This is just still a claim. Where is the dalil for that? Right. Yeah. I remember him quoting a verse, but I don't remember which one. Oh, let me tell you a dalil. The hadith that they quote is that "Ballighu anni walau aya." Yeah, no, he quoted a verse actually, but I don't really remember which verse he quoted. So okay, so if he ever quotes "Ballighu anni walau aya," you must respond that this is also khabrul wahid. You cannot quote this. Right. Yeah. No, this was actually quoted by me, and I told him that we have this hadith "Ballighu anni walau aya." However, not all Sahaba. Like for example, if someone was to say, three of us sitting over here, if someone was to tell us something, it's not required for all three of us to convey this particular message to the same audience. If one of us conveys it to the hadith itself is saying walau ayah, not walau hadith. Right. So the hadith is about ayah, not about this hadith is not about other hadiths. It's about conveying the ayat of the Quran. So anyway, yeah, I mean, their ideology is very shallow, and I think if one of them himself would appear to, would come to my stream, inshallah, we would respond to him. But alhamdulillah, whatever you asked, whatever questions you asked, I try to answer. So inshallah, you can join next time. If I actually asked him to read Usul al-Hadith by Dr. Bilal Phillips. I think it's a good book just to establish the basis of the Usul al-Hadith. But once he has read it, inshallah, I can ask him to join your stream, inshallah. Jazakallah khair. All right, जज़ाकुमुल्लाह। नीचे बहुत से नॉन मुस्लिम जो है ना वो बोल रहे हैं कि ये फुल है, तो अगर मुस्लिम हमारे भाई थोड़ा सा जल्दी जी हाँ हजरत भाई मुसलमान के लिए जी भाई जी मुफ्ती साहब बहुत महीनों से ट्राई कर रहा था, तो फिर एक से हो नहीं पा रहा मेरे से, तो एक से ज्यादा सवाल है, तो ये बस कर लूं ये कर लीजिए जल्दी से जी, पहले एक तो करें। अच्छा मोहम्मद आवाज भी आपकी तरफ से बड़ी गड़बड़ आ रही है जी। ये सही बुखारी, जी सही बुखारी है ना 3329 में ना आता है कि जब प्रॉफिट मोहम्मद से पूछा गया कि जैसे बच्चे की ना रिसेम्बलेंस कैसे आते, तो उन्होंने कहा अगर मर्द का पहले निकलेगा डिस्चार्ज होगा तो मर्द कैसा हो जाएगा, और अगर औरत कैसा निकलेगा तो औरत कैसा हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक एरर है ना, जीन्स डीएनए की वजह से होता है। औरत डिस्चार्ज करेंगी तो उसकी वजह से थोड़ी उससे रिसेम्बलेंस आएंगी,
3329 है सही बुखारी। थोड़ा सा अपडेट कर लिया करो, कितनी मरतबा एक ही सवाल पूछो कि लोग बोर हो जाएं। आई नो कि ये आपके लिए कोई बहुत नया सवाल है, लेकिन ये हमारे लिए नया नहीं है, तो हजारों मरतबा ये सवाल का जवाब दे चुके हैं। आसिम भाई आपके पास भी सवाल होगा, आप अगर प्लीज गो है जवाब दे दीजिएगा। आई थिंक आप ही को हमने जवाब दिया। कई एक साहब हैं जो तकरीबन 6 महीने से यही सवाल लेकर आते हैं, वही तो नहीं है आप? जी जी मेरे वही ख्याल है से आप, वही I आपकी think। स्ट्रीम में भी आता है। जी जी हाँ, ये मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज साहब की जी, भी स्ट्रीम में आ मैंने चुके हैं, बात हमारी करी थी। स्ट्रीम में भी आ चुके हैं, सेम ही क्वेश्चन लेकर। जी नहीं, मैं नहीं था वो। फिर आप इसका ताल्लुक अच्छा, आपने- रिसेम्बलेंस करेंगे जी, खैर बोल दीजिए आप जी आसिम भाई। जी, तो भाई सिंपली उस हदीस में ये बताया गया है कि जिसका नुत्फा जो है वो गालिब होता है। रिजेम्बलेंस, अब जैसे आप भी जानते होंगे कि जो ट्रेड्स होते हैं वो कैसे जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो आप अगर इसमें बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो सिंपली है कि जो हावी होता है, जो ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसका डीएनए सिंपल लफ्ज में बोले तो वो उसके ट्रेड्स में उसके चले जाते हैं। तो सिंपली अगर माँ का जो है वो डोमिनेट करेगा तो बच्चा उससे रिजेम्बलेंस करेगा। गर्चे उसके अंदर बाप के जो ट्रेड्स हैं वो भी होंगे, जो फादर के ट्रेड्स हैं वो भी होंगे, लेकिन वो अंदर छुप जाएंगे, दिखेंगे नहीं। मे भी हो सकता है अगले 2-4 नस्ल में वो फिर जाहिर हो जाए। तो अगर बाप का जो है वो डोमिनेट करेगा तो माँ का जो है वो अंदर छुप जाएगा और बाप का जो है वो जाहिर हो जाएगा। तो सिंपल है, उस हदीस में यही बातें तो की गई है, इसमें क्या साइंटिफिक एरर्स है? जी वहाँ पे वो अरबिक वर्ड आप दिखा आपने सकते सही हैं से क्या? वो आपके बुरे आपने चीज जो वहाँ पे। बायोलॉजी का जो ये चैप्टर है आपने सही से पढ़ा है कि कैसे जो है वो ट्रेड्स मुंतकिल होते हैं, कैसे जो है वो ट्रांसफर होते हैं ट्रेड्स? जी मैं वहाँ पे जो है ना शायद ट्रांसलेशन फिर एरर होएगा इंग्लिश में, आप जो बता रही थी वो अलग है। नहीं, वो यही बात है उसमें कि अगर माँ का नुत्फा डोमिनेट करेगा तो माँ के जैसा दिखेगा, बाप का नुत्फा अगर डोमिनेट करेगा तो उसमें डोमिनेंट के ही लफ्ज इस्तेमाल हुए अगर ट्रांसलेशन आप देखेंगे तो। ठीक है, तो जो डोमिनेंट होता है वो उससे रिजेम्बलेंस करता है, सिंपल है। ठीक है भाई, चलें, सही जी है, तो ये ठीक है। शुक्रिया। अच्छा भाई, अगले हमारे कॉलर हैं आलम स्केप्टिक। अगर आप वही हैं तो बड़े दिनों के बाद आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी वही है ना, हमारी बात हो चुकी है कई मरतबा ना। जी जी आपकी हमारी बात हुई थी बहुत बार। हाँ जी, आई थिंक हमारी बात ये वही तो नहीं, बहुत दिन पहले जो कैसर भाई के चैनल पे कह रहे थे मैं पंखा हूँ वगैरह? नहीं ये वो नहीं है। अच्छा, वो भी कोई स्केप्टिक ही थे। आपको तो नहीं है आलम भाई पंखे वाले? नहीं हाँ आप नहीं, अच्छी तरह पहचानते हैं मुफ्ती साहब मुझे? जी मैं पहचानता हूँ बिल्कुल। जी फरमाइए। तो मतलब हमारी बात हुई थी, एपिस्टेमोलॉजी तक बात हुई थी हमारी। हाँ, तो मैं चाह रहा था कि आपका और हमारा कुछ 1-on-1 डिस्कशन हो जाए इस पे। मैं चाहता हूँ कि मतलब अगर ऑनलाइन ही हो तो लोगों को भी मुस्तफीज होने में उसमें फ़ायदा होगा, मतलब उनकी भी अंडरस्टैंडिंग में इजाफा होगा। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो उसमें भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी लोगों की। तो मैं चाहता हूँ कि एक लीनियरली एंड लॉजिकली एक डिस्कशन ऐसा आपसे बात हो सकती है। हाँ तो करिए। तो मतलब मेरा सवाल मतलब मैं एक प्रपोजिशन रखता हूँ मुफ्ती साहब, आप बताइए कि वो आपके हिसाब से सही है गलत है। मतलब आपके हिसाब से तो गलत ही होगा, तो आपको मतलब बताना है कि गलत क्यों है। वेट तो ये मेरा डबल प्रपोजिशन ये है कि ये कहाँ से आ रही है? ये आप ही की तरफ से आ रही है क्या इनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, जी, ये आलम बाहर भाई हैं। के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। अच्छा हाँ मैं तो भाई घर बाहर था तो शायद आवाज आ रही है उसकी। अच्छा, एक मिनट रुक जाए जी। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आप सुनाएं, सब खैरियत? आसिम भाई, कॉलेज भाई, आतिफ भाई, आवाज ठीक आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। आपको वेलकम बैक जी, माशाल्लाह, सबको सलाम, बहुत शुक्रिया हजरत। बारक जी। आलम भाई गो जी अहेड। हजरत, ये आलम भाई वो हैं जो कह रहे थे कि
ये बहुत पहले, बहुत कुछ 1.5 साल एक पहले आपके साथ, मेरे साथ और कैसर भाई के साथ एक ही स्ट्रीम में बात हुई थी, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है, उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि मैं एक ऐसी किताब लेकर आऊंगा जिसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो आप उसको खुदा के मानेंगे। ये आज तक हम इंतजार कर रहे हैं। फिर जब इन्होंने कहा किताब, तो किताब से 2 पेज पर आए और 2 पेज से 1 पेज पर आए, और आज तक मैं इनको ढूंढता फिर रहा हूँ। तो आज तो यहाँ मिल गए, मुलाकात हो गई, टकरा गए जी। आलम भाई कोई किताब मुरत्तब कर पाए? जी मुफ्ती साहब, मैं तो ये मतलब चाह रहा था कि आप इसका जवाब देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज परसेप्शन। हाँ, नहीं वो कहीं इग्नोर कर गए हजरत। हजरत देखा कितनी खूबसूरती से इग्नोर कर गए हैं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इधर। मैं तो ये चाह रहा हूँ। आपसे आमिर भाई आपसे बात करने नहीं आए ना, मुफ्ती साहब से नहीं, मैं तो आपसे करने आया हूँ। मैं आपसे करने आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ यहाँ? मैं आपको देख कर आया हूँ। तो प्लेटफॉर्म मुफ्ती साहब का है। मैं अगर आपसे बात करना हो तो आपके प्लेटफॉर्म पे आता ना। तो नहीं, क्यों नहीं आते? यही तो सोच रहा हूँ कि मेरे प्लेटफॉर्म पे कम वक्त कोई नहीं आ रहा। ये तो बात है, इसीलिए तो मैं आपको ढूंढते यहाँ आ गया हूँ। दिक्कत ये है मेरा भाई। तो हमको थोड़ा फील भी हो ना, जेन्युइननेस फील भी हो। अब मुफ्ती साहब के अंदर जेन्युइननेस फील होती है, इसलिए आते हैं। अच्छा, जेन्युइननेस नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने। एक डिमांड जो आपकी तरफ से क्लेम था, वो डिमांड करना आपसे, वो नॉन जेन्युइन हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, वो जेन्युइन रहा ही नहीं है। क्या आपने नहीं कहा था मैं ले आऊंगा? तो क्या मेरा आपसे डिमांड करना जेन्युइन नहीं है? नहीं, आपका नॉलेज एक तरफ है, लेकिन आपका जो रवैया है वो तो नहीं लगता कि मेरी डिमांड नहीं, फोकस मेरी डिमांड है। मेरे रवैये को 1 मिनट के लिए छोड़ दें। आप बात मुफ्ती साहब से ही कीजिएगा। आप बात, मैं कब निकाल रहा हूँ? मैं तो आपके पीछे आया हूँ, आप नहीं आते मेरे पास। चले, मेरे ख्याल से मुख्तसरन इसका हल यही है ना कि आप ये जवाब तो दे दें कि भाई वो उस वो आप उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो रेडी हैं तो करेंगे। कौन रेडी है? रेडी तो आप कौन? आपके पास आप कौन था? मैं तो आपके सामने। अगर ऑन सम अदर डे उस पे अगर कुछ, अगर वो मुझे डेट देते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है, तो वो अलग बात नहीं, वो सम अदर डे आ नहीं रहा। कम वक्त 2-2.5 साल के करीब होने वाला है। ये बड़ी दिक्कत है। और आप आए हैं मुफ्ती साहब के पास। तो अब आप टाइम दीजिए मुझे, मैं आ जाता हूँ। नहीं, अभी मैं तो अभी टाइम दे रहा हूँ। अभी मुझे कोई अगला टाइम अभी दे दें, फिर मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा। मुझे एक डेट अभी दे दें कि मैं तब लेके आ रहा हूँ। हाँ, वही कह रहे हैं। मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। बस क्या करें भाई? आलम भाई एक डेट दे दीजिए ना कि अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एक डेट दे दें। और फिर आमिर भाई मुझे आपके डर से और आपके मुहावरों से मुझे पता चल रहा है कि आप क्यों भाग रहे हैं। तो दे दें जवाब, जल्दी डेट दे दें जी। हाँ, अगले हफ्ते हो सकता है। मतलब आप बताइए कब स्ट्रीम करते हैं आप, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, वेडनेसडे को मैं आपका वेट करूंगा। ठीक है, ओके मेरा भाई, थैंक यू। ओवर टू मुफ्ती साहब। वेडनेसडे जी, यही टाइम। ओके। वैसे कमाल बात यह है कि मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में आप आए और आपको मेरा याद नहीं है। खैर, नो प्रॉब्लम, कोई हो सकता है जी मुफ्ती साहब जी। तो चले मुख्तसर बात कर लेते हैं। आलम भाई, आपका सवाल ये है कि परसेप्शन क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक, ये आपका प्रोपोजिशन है। हाँ, और परसेप्शन का थोड़ा मैं डिफाइन कर देता हूँ। परसेप्शन इज मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ। डिफाइन नहीं करें आप, नॉलेज डिफाइन करें। नॉलेज वो है जो, मतलब जो इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं जी परसेप्शन के थ्रू। नहीं, ये तो कोई डेफिनेशन ना हुई। एक आदमी आपको, अगर आपको एक आदमी ये कहे, नहीं, अभी डिफाइन कर रहा हूँ ना, अभी रुकिए तो सही आप। जी कंप्लीट अभी डिफाइन नहीं किया मैंने। नॉलेज इन द सेंस जो इंफॉर्मेशन हम परसेप्शन से गैदर करते हैं, उसको हम मीनिंगफुल आउटकम उससे कुछ निकालते हैं, कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। वी मेक जनरलाइजेशंस आउट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ये क्या बात हुई? मतलब ये किसने आपकी अपनी घर की बनाई हुई डेफिनेशन है, कहीं से पढ़कर आए हैं? इसका मतलब क्या है कि उसका कोई आउटकम निकालते हैं? बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है उसका कोई आउटकम नहीं निकलता। अब आप हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज इन द सेंस, अब मुझे पता चला कि ये फूड है और इससे भूख मर जाती है, मतलब इससे मेरी भूख खत्म हो जाएगी इससे। ठीक, फिर तो मैंने परसेप्शन से जाना कि फर्स्ट मैंने जब उसको लोगों से सुना या मैंने खुद करके देखा तो इट वर्क्स। अगर आपने कोई ऐसी चीज देखी कि जो आपने कभी ना देखी हो, अब इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आपने जो ऐसी चीज देखी जो कभी ना देखी थी पहले, हाँ,
तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन हो गई ना, न्यू नॉलेज हो गई वो। ये न्यू नॉलेज हुई ना। अब मुझे नॉलेज की, आप मुझे नॉलेज को डिफाइन करें कि नॉलेज इसको कहते हैं। आप मुझे आइडेंटिफाई ना करें, मतलब डिफाइन करने, मुझे डिफाइन ऐसा करने में मुझे ऐसा लग रहा है मुफ्ती साहब, आप कुछ एक नॉलेज, आपके अंदर एक कुछ नॉलेज का डेफिनेशन आप खुद लेके बैठे हैं, तो आप ही बता दीजिए। भाई मैं तो आपका शायद इंतजार मैं नहीं कर रहा, आप आएंगे और मुझसे सवाल करेंगे। मैं कोई आपका इंतजार में तो बैठा नहीं था यहाँ पर। आपने एक डिस्कशन शुरू किया और आपने कहा मैं परसेप्शन डिफाइन करूंगा। परसेप्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डिफाइन करें नॉलेज के, नॉलेज क्या है। मैं वो समझना चाहता हूं कि आप जिसको कहते हैं ना कि ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन, तो नॉलेज किसे कहते हैं, वो आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। नॉलेज को तो मैंने डिफाइन किया ना मुफ्ती साहब, मैं बोल रहा हूँ द इंफॉर्मेशन वी कलेक्ट दैट वी कलेक्ट फ्रॉम परसेप्शन। वो डेफिनेशन क्या एग्रीड अपॉन है? हाँ, वो फिलोसोफर्स ने की है, क्या वो एपिस्टेमोलॉजिस्ट ने की है, या आपने अभी बनाई है? नहीं, आप कुछ भी समझ लीजिए उसको, आप उसको एग्री करते हैं तो एग्री कीजिए, नहीं तो नहीं करते हैं तो मत कीजिए, आपका बयान कीजिए फिर, ठीक है, उसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। आपके पास जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज का डेफिनेशन है, उसी के बेस पे आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी आवाज दब रही है क्या? जी जी दब रही है आपकी आवाज। जी हजरत, ये बीच में टोक रहे हैं, एक तो बड़ी बदतमीजी से बात, थोड़ा हौसला करें, आप रुकें, मुफ्ती साहब को बात करने दें, अगर आप जेन्युइन है तो ठीक है मेरा भाई। हाँ, वो चीज ना करें। जी मुफ्ती साहब आप बोलिए, मैं इनको थोड़ा सा जी। हाँ, ये माइक जो है असल में मेरा मैं इनको, हाँ ये। अच्छा, अब बोलें, अब आवाज ठीक है? अब कुछ इसमें तब्दीली है आवाज में, कोई फर्क है? थोड़ी तब्दीली हुई है जी, थोड़ी। अच्छा ठीक है, चले सही है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आलम भाई कि नॉलेज की जो डेफिनेशन है वो है जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ। तो उसमें तीन चीजें आपको जरूरी होती हैं, जस्टिफिकेशन, ट्रूथ और बिलीफ। फिर आपको हर एक को डिफाइन करना पड़ता है कि जस्टिफिकेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, बिलीफ क्या है, तब जाके आप नॉलेज को डिफाइन कर पाएंगे। अब अगर आप जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को मानते हैं कि ये नॉलेज है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। ओके, अगर चलो यही मान लेते हैं कि जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है, तो व्हाट इज जस्टिफाइड एंड व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज बिलीफ? मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि आपको हर एक को डिफाइन करना पड़ेगा कि जस्टिफिकेशन क्या है, ट्रूथ क्या है, बिलीफ क्या है। तो आप ही के बेस पे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ट्रूथ कहते हैं कि किसी चीज का रियलिटी के मुताबिक होना, ठीक है। और उसके अंदर भी बाय द वे बहुत ज्यादा कई सारी थ्योरीज हैं। आई मीन इट्स अ वेरी ड्राई टॉपिक टू बी ऑनेस्ट। हम इसके ऊपर बात करने को करेंगे 5 मिनट के अंदर लोग कहने लगे कि यार आगे बढ़ो। तो मैंने इसीलिए यही तो है ना, हाँ यही तो है ना, जब हम बुनियादी को अगर नहीं समझेंगे, बुनियादी हमारी ठीक नहीं होगी, तो हम उसके ऊपर जो इमारत कायम कर रहे हैं वो कहां से सही होगी? नहीं, हमारी इमारत तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी इमारत का मसला हो रहा है असल में। मुफ्ती साहब देखें, अब आलम भाई आपको बेसिक डेफिनेशन जो नॉलेज की है वो नहीं पता था, और आप पूरी इमारत बनाकर आए थे एपिस्टेमोलॉजी पे बात करने के लिए। मैंने जो डेफिनेशन बनाई है, उसके डेफिनेशन के अंदर वो डेफिनेशन आपने अभी बनाई है। आई नो, वी नो कि आपने अभी डेफिनेशन बनाई है। वेट आई एम व्हाट आई एम सेइंग, आपने जो जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब किया है, वो अगर आप एक ईच वर्ड को डिफाइन करने लगेंगे, तो मैं जो कंक्लूजन बोल रहा था वही उसका मतलब है। अच्छा, एक बात बताएं आप, एक बात बताइए आप। मैं एक मिसाल देता हूँ, सिनेरियो देता हूँ। आप नॉर्थ पोल पे रहते हैं, आपने कभी साउथ पोल नहीं देखा, आपने कभी नॉर्थ पोल से आप बाहर नहीं निकले, आपने कभी ग्रास नहीं देखी, कभी हरा कलर नहीं देखा, आपने सिर्फ व्हाइट कलर देखा है। आपको पता भी नहीं है कि घास कैसी होती है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि ग्रीन कलर कैसा होता है, आपको कुछ नहीं पता इस ताल्लुक से, चूंकि आप हमेशा आपने वहीं आंखें खोली हैं, आप पूरी जिंदगी वही रहे हैं। अब मैं आपको एक हरी घास दिखा दूं और आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आपको मुझे बताइए कि क्या नॉलेज हासिल हुई? मुझे परसेप्शन हासिल हुई, मैं उसको नया वर्ड दे दूंगा, या फिर मैं उस वर्ड की तलाश करूंगा कि इसको क्या कहते हैं लोग। नहीं, आपने कहा ना परसेप्शन से, ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन। परसेप्शन तो है मौजूद। हाँ वही ना, मैं परसेप्शन जब करूंगा उसको, तो अब एक रहता है अपना सिंटेक्स, एक रहता है सिमेंटिक्स, यानी जब मैं उसको देखूंगा तो अब मेरे परसेप्शन में तो आ गया वो। अब उसको, तो इसका मतलब ये कि परसेप्शन से, इस परसेप्शन से आपको नॉलेज हासिल नहीं हुई। अब आपको मजीद किसी और चीज की जरूरत है नॉलेज हासिल करने के लिए, अभी तो हासिल नहीं हुई ना। नहीं, इसलिए तो मैं परसेप्शन को पहले डिफाइन कर रहा था ना।
भाई परसेप्शन वाज़ेह है कि आप अपने 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस को इस्तेमाल करें। आपने सेंस ऑफ साइट को इस्तेमाल करके आपने हरी घास देख ली, आपको तो पता नहीं है कि हरा कलर कैसा होता है, या कोई हरा कलर कोई चीज ऐसी होती है कि जिसको हम हरा कहें, और घास क्या होती है। मैंने आपको हरी घास दिखाई, अब आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये हरा है और ये घास है? तो वही कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैं परसेप्शन मेरे पास ये है कि सेंसेशन प्लस हमारी जो दिमाग की जो कंस्ट्रक्शन है उसको, उसके ऊपर जब वर्क करके प्रोसेसिंग करके दिमाग जो हमारा कुछ कंक्लूजन्स बनाता है, तो मैं इस दोनों के मेल को परसेप्शन कह रहा हूँ। नहीं, ये अपनी डेफिनेशन कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं? व्हाट यू मीन? मैं कह रहा हूं जो चीज एक स्टैंडर्ड है, हम उस स्टैंडर्ड पे चलेंगे ना, फिर उसको परसेप्शन लगे। अगर आपने परसेप्शन और रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म दोनों को मिक्स कर दिया, तो उसको परसेप्शन क्यों कह रहे हैं आप? वो तो हम भी मानते हैं। नहीं, उसमें मेरे और आपके दरमियान फर्क कहाँ है? नहीं, मैं समझिए आप, मैं एक नया फिलोसोफर हूँ, उसके बेस पे बात नहीं है ना। हम क्यों समझे? हम तो पुरानी वाली फिलॉसफी चलेंगे। क्यों समझे हम नया फिलॉसफी? आप तो पुरानी वाली फिलॉसफी को नहीं मानते ना। नहीं, हम मानते हैं, उसके अंदर इस्लाह करते हैं और उसको मानते हैं अगर कहीं काबिल इस्लाह कोई चीज होती है। अच्छा, तो वो चीज को क्या बुलाते हैं जिसके अंदर सेंसेशन प्लस प्रोसेसिंग ऑफ द ब्रेन है? कुछ भी हो, मेरे कहने मतलब ये, आपने कहा कि ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन, मैंने एक मिसाल दे दी, परसेप्शन मौजूद है और आपको नॉलेज हासिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ऑल नॉलेज डज नॉट कम फ्रॉम परसेप्शन। साबित हो गया। आपने अगर एक सुन लीजिए, होल्ड ऑन, ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन, ये एक यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए एक पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट भी अगर मैं दे दूं तो साबित हो जाएगा। मैंने एक पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया जिसको हम अरबी में सालिबा जुजिया बोलते हैं, वो मैंने दे दिया आपको कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको नॉलेज हासिल नहीं हुई जबकि परसेप्शन मौजूद था। देयरफॉर ऑल नॉलेज कम फ्रॉम परसेप्शन टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। नहीं, वो तो आपके हिसाब से हुआ ना, नॉलेज हासिल नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूं नॉलेज हासिल हुआ। नहीं हासिल हुई ना, आप खुद ही कह रहे हैं कि अब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। भाई परसेप्शन के बाद नॉलेज हासिल होनी चाहिए, इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं। मुफ्ती साहब, वो सेंसेशन हुआ ना सिर्फ। मोडस पोनेंस समझते हैं किसे कहते हैं? जी, मोडस पोनेंस समझते हैं किसे कहते हैं? नहीं समझते। कयास इस्तिस्नाई समझते हैं किसे कहते हैं? नहीं समझ। तो मतलब हाउ डू आई डिबेट विद यू अगर आपको बेसिक्स नहीं पता? अच्छा, तो मतलब आपके साथ डिबेट करना है, तो आपके साथ अगर डिबेट करना है तो एक परफेक्ट फिलोसोफर होना चाहिए। जी, अच्छा ठीक है मुफ्ती साहब, अगर ऐसा है तो। जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पर्सनल मुझसे बात कर लें, मुझसे पर्सनल बात करेंगे तो पब्लिक का टाइम वेस्ट नहीं होगा। पब्लिक का टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या हो रही है। तो हम जब हम फिलोसफी पर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। अब आपको फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी का पता नहीं है, अपनी फिलोसफी आप घर से बना कर ला रहे हैं, तो इस तरह कोई बात होती है? इस तरह तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने खुद ही कहा, खुद ही अभी आपने कहा कि एक नया फिलोसोफर आपके सामने आया। क्यों आया है? पुरानी फिलोसफी को कहां दफन करके आया वो? नहीं, फिलोसफी के बेस पे क्यों बात करें हम? मेरे नॉलेज भाई एपिस्टेमोलॉजी फिलोसफी की ब्रांच है मेरे भाई। आपको अगर इतना नहीं पता तो फिर क्यों बात करूं मैं आपसे? एपिस्टेमोलॉजी है क्योंकि मुझे आपको और बात आपको करनी है एपिस्टेमोलॉजी पर। नहीं, आपको आपका मकसद कोई फिलोसोफर को ढूंढना है या किसी को समझाना है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप पहले पढ़ लें। ये सबको हजरत जज करने के लिए आया है। ये अकेला सिर्फ जेन्युइन आदमी है, बाकी सारे नॉन जेन्युइन है। आपके लिए राइट आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप आमिर भाई का जो चैलेंज है ना उसको करें पूरा, अगले हफ्ते पहुंच जाइएगा, ठीक है? उसमें टाइम लगाएं, इससे कोई फायदा नहीं है। you need to know the basics। फिलोसफी की जब आप बेसिक्स पता चल जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हमसे गुफ्तगू करें, ठीक है? हम बात करेंगे। ठीक है, आज उधर वेडनेसडे को मेरा भाई शाबाश 9 बजे की हो रही है। हाँ, अच्छा कह रहे हैं कि आप समझाएंगे कि हम तो समझने आए हैं, तो मुफ्ती साहब जो समझा रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे, और कह भी रहे साथ में कि तो समझाएंगे या फिलोसोफर देखेंगे। समझने वाला एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट तो पूरा होने देना। मैं तब से ये चीज नोट कर रहा हूँ कि चलो मुझे तो तुमने कह दिया कि भाई साइड पे कर दो, कम से कम जिनसे बात सीखना चाह रहे हो, जिनको करना चाह रहे हो, उन्हीं के लिए रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन वो तो शो करो कि आप उनको सुनो तो सही। बदतमीजी कर रहा था आदमी, यानी इसका मतलब खुद जेन्युइन नहीं। अच्छा भाई, ये कौन साहब है फ्री विल? हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पहले मिस्टर आमिर सर और केसर साहब के स्ट्रीम में भी एक क्वेश्चन पूछा था फ्री विल के बारे में,
उन्होंने बोला ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है पहले, लेकिन मैंने आपके वीडियोस देखे, मुझे उसमें नहीं मिला, इसलिए मैं वापस वही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? कैसर भाई से पूछा आपने और किससे पूछा? आमिर सर भी थे। आमिर सर, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं वही क्वेश्चन वापस पूछना चाहता हूँ, एटलीस्ट आप लोग जवाब दो तो उसकी बात है। तो मैं पूछ सकता हूँ क्या? पूछे। एक एग्जांपल थ्रू बताता हूँ। एक्चुअली समझो कि अभी मेरा एक बच्चा होने वाला हो जो अभी बॉर्न हुआ नहीं है, तो अच्छा ये बताइए, आप एथिस्ट हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं? एक्चुअली मैं पहले क्रिश्चियन था और उसके बाद में जाकिर नाइक के वीडियोस देख के मुझे क्रिश्चियनिटी से थोड़ा भरोसा उठ गया, लेकिन फिर बाद में मैंने उनके वर्ड्स कुरान में रीड करने के बाद मुझे जाकिर नाइक से भी विश्वास उठ गया। तो मैं ऑलमोस्ट अभी अब आप हैं क्या? आप जाकिर नाइक से उठ गया, नो टेंशन। जाकिर नाइक पर ईमान लाना ही चाहिए। हम तो नहीं ईमान लाते, हम तो ईमान अल्लाह पर लाते हैं। आप बताइए आप क्या हैं? मैं अभी एक्चुअली ऑलमोस्ट थोड़ा एथियस्ट की तरफ हूँ। ऑलमोस्ट थोड़ा एथियस्ट, चलो ठीक है, ये एक नई किस्म निकली है जी। एक्चुअली क्या है कि अगर मुझे कोई सही बता दे तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई रिलीजन से। अगर मैं जहाँ पे सही जान लूँ तो मैं उसके बाद रिलीजन में भी जा सकता हूँ एक्चुअली। चले सही है, बोले अब आप आगे बढ़े। हाँ, तो अगर मेरा एक बच्चा है जो एक्चुअली समझो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है जो अभी बॉर्न ही नहीं हुआ और उसके बिहेवियर भी गॉड को नहीं मालूम, और गॉड पहले से सब कुछ जानता है। गॉड जानता है कि वो बच्चा हेवन में जाएगा या हेल में जाएगा। एक मिनट, आपने भी क्या कहा? एक मिनट, होल्ड ऑन, जरा क्वेश्चन सही होना चाहिए। आपने कहा बच्चा बोर्न नहीं हुआ और उसका बिहेवियर भी गॉड को नहीं मालूम। अच्छा, गॉड को मतलब जो बच्चा भी जन्मा ही नहीं है, बॉर्न ही नहीं हुआ, तो गॉड को शायद मालूम होगा, तो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ठीक है, तो अभी वो अभी फिलहाल पृथ्वी में किसी को उसका बिहेवियर नहीं मालूम। इस अर्थ में किसी में कौन कौन शामिल है? आप हैं, आपकी वाइफ है, या गॉड भी शामिल है? अभी तो जन्मा ही नहीं है, मैं नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ। भाई गॉड के बारे में आपका नजरिया क्या है? अगर गॉड मौजूद है तो गॉड को तो सब मालूम होगा ना, आगे पीछे का सब मालूम होगा। यही क्वेश्चन है कि जब ये अगर जब बच्चे का जन्मा ही नहीं है और गॉड को सब कुछ मालूम है, आप पहले क्वेश्चन सुन लो, उसके बाद में फिर आप डिसाइड कर लेना। हाँ नहीं, क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई चीज गलत बात है तो फिर जाहिर है कि मैं उसमें रोकूंगा ना। जी अब बोले। ठीक है, अगर बच्चा जन्मा ही नहीं है और उसके बारे में गॉड को मालूम है, गॉड को ये मालूम है कि वो हेवन में जाने वाला है कि हेल में जाने वाला है, तो अगर गॉड को पहले से मालूम है तो उस बच्चे पे फ्री विल कैसे हुआ? जैसे एग्जांपल, अगर गॉड को मालूम है कि वो बच्चा हेवन में जाने वाला है, तो फिर वो बच्चा कभी भी जन्मने के बाद में गलत काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वो हेवन में जाने वाला है। तो फिर उसका टेस्ट कहाँ से हुआ करके मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। मैं आपको एक प्रोपोजिशन दे रहा हूँ, उस प्रोपोजिशन को आप गौर से समझकर, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, आवाज भी आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज है। इस प्रोपोजिशन को समझकर इस पर गौर कीजिएगा। अगर आप खुलूस के साथ और मुकम्मल न्यूट्रल रहते हुए इस प्रोपोजिशन पर गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। प्रोपोजिशन ये है कि किसी की डेफिनेट नॉलेज या डेफिनेटिव नॉलेज दूसरे के बारे में उसकी फ्री विल को खत्म नहीं करती है। ठीक है, एक आदमी की डेफिनेटिव नॉलेज या एक जात की, एक बीइंग की डेफिनेटिव नॉलेज दूसरे के बारे में दूसरे की फ्री विल को खत्म नहीं करती है। ये एक प्रोपोजिशन मैंने आपको दे दिया है, इस पर आप गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह खुद ही राहयाब हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई? मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से गॉड ने पहले डिसाइड कर दिया, फर्स्ट जो डिसाइड करता है उसके बाद में सेकंड आदमी को फ्री विल नहीं रहता। मैं कह रहा हूं कि आपको जो सवाल है ना, वो सवाल खुद ब खुद इस प्रोपोजिशन से हल हो जाना है। अगर ये प्रोपोजिशन आपके समझ में आ जाए, ना आए तो फिर आप हमसे सवाल करें। पहले मुझे बताएं, ये प्रोपोजिशन आपके समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, आपने यही नहीं, मेरे को पूरा समझ में नहीं आया क्योंकि आपने बहुत ही हार्ड लैंग्वेज में बताया, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया कि आपके हिसाब से अगर एक भगवान को पहले से फ्री विल मालूम है, फिर भी इंसान को फ्री विल रहता है करके मेरे हिसाब से आप इस तरह बोलना चाहते हो। देखिए, पहले से का तो कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। टाइम तो खुदा पर अप्लाई नहीं होता, टाइम तो मेरे और आप पर अप्लाई होता है। टाइम आपके बच्चे पर अप्लाई होगा जो फ्यूचर में आएगा। खुदा पर तो टाइम अप्लाई नहीं होता ना। आप ये सवाल कर ही नहीं सकते कि पहले से खुदा को मालूम है। पहले से क्या मतलब? क्या खुदा पहले है बाद में है? पहले और बाद तो टाइम की प्रॉपर्टीज है। खुदा पर तो टाइम अप्लाई नहीं होता। खुदा को टाइम अप्लाई नहीं होता करके आपको किसने कहा? करके आपको कैसे मालूम? भाई ये तो फिर बात करें खुदा के वजूद की, फिर इस पर बात ना करें।
कि खुदा की तकदीर और जनाब फ्री विल वगैरह की बात जब आती है जब खुदा के वजूद को आदमी तस्लीम कर ले। अगर खुदा मौजूद है तो खुदा अपनी प्रॉपर्टीज और अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक